Hello students, welcome back to your own channel H study platform. Today we will discuss competency based question of history and civics. These questions are important for board exam 2025. So let's start the video. Question number 1 MCQ. Rajya Sabha 238 plus 12 members. लोक सभा डैश मेंबर्स यानी लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 520 प्लस 30. ओके, करेक्ट आंसर होगा सी. क्वेश्चन नंबर 2. द हाउस हैज़ 550 मेंबर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे. 45 मेंबर्स आर प्रेजेंट. द गवर्नमेंट वांट्स टू प्रेजेंट अ बिल. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? ऑप्शन दिया हुआ है. इसका करेक्ट आंसर इसका भी सी होगा. द गवर्नमेंट इज अनएबल टू इंट्रोड्यूस द बिल बिकॉज द स्पीकर एडजस्ट द हाउस. तो इसका करेक्ट आंसर भी सी होगा. क्वेश्चन नंबर 3. 31 जुलाई 2023 ANI रिपोर्टेड गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस डेली सर्विस ऑर्डिनेंस बिल इन लोकसभा टुमारो. Why should the government introduce an ordinance in the Lok Sabha? 4 ऑप्शन दिया हुआ A, B, C, D. करेक्ट आंसर होगा D. Every ordinance needs to be approved by both house of the parliament to become law. Question number 4. Identify the exclusive power of the Lok Sabha. PA introduce the money bill, passes an ordinary bill, can vote a government out of power, can impeach of the president. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सी. ए में दिया हुआ पी एंड क्यू, बी में दिया हुआ आर एंड एस, सी में पी एंड आर, डी में क्यू एंड एस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पी एंड आर. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक द अमेंडमेंट एज शोन इन द पिक्चर? ऑप्शन दिया हुआ द पार्लियामेंट, द हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट. क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ए, द पार्लियामेंट. क्वेश्चन नंबर 6. 12 February 2023 the Economic Times reported more than 97.64 lakh cases settled in the first National Lok Adalat of 2023. NALSA. Which advantage of the Lok Adalat is most highlighted in the above headline? Saves money, speedy justice, works on compromise, reduce burden on higher court. क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा स्पीडी जस्टिस, बी. क्वेश्चन नंबर 7. द हाई कोर्ट feels there has been blatant injustice in a case solved by the lower court and transfer the cases to itself to check the judgment which jurisdiction is its exercising. इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए, रिवाइसरी. क्वेश्चन नंबर 8. In 1853 the British East India Company did not acknowledge the succession of Anand Rao, the son of Rani of Jhansi, as a lawful heir to the throne. How did the British justify this decision? 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन सा करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ए. ही वॉज नेम्ड द रूलर विदाउट द consent of British East India.
ईस्ट इंडिया कंपनी। करेक्ट आंसर होगा इसका भी ए। क्वेश्चन नंबर 9, replace the underlined phrase with the correct option. The objective of the non-cooperation movement was to demobilize public opinion all over the country. करेक्ट ऑप्शन के साथ अंडरलाइन फ्रेज को मैच करना है, रिप्लेस करना है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 का डी, टू अटेंड सेल्फ गवर्नेंस। क्वेश्चन नंबर 10, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री हैज डिसाइडेड टू enforce a law that involves issuing license to keep arms. Who among the following British Governor Generals had passed a similar law in India 1878? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी, लॉर्ड लाइटन। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द टू स्टेटमेंट गिवन below about the split in Congress and select the option that shows the correct relationship between A and B. A है, leader with moderate political opinions wanted to insert a clause in the Congress constitution that said the Swaraj was to be achieved through constitutional means. B है, Swadeshi and boycott were the basic components of methods of the struggles of the assertive nationalists that led to the split in the Congress in 1907. क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा बी, बी इज द रीजन फॉर ए। बी इज द रीजन फॉर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। वैसे ही क्वेश्चन है, रीज़न और एक्सप्लेनेशन वाला। ए, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अ मेयर री एडजस्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। बी में बोल रहा है, द नेशनलिस्ट बिलीव दैट द गवर्नमेंट डिड नॉट इंटेंड टू स्ट्राइक एट द रूट्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का सी, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। A is true but B is false. Question number 13. Analyzing the picture given below, identify the statement that does not align with its A, B, C, D ऑप्शन दिया हुआ है पिक्चर के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा डी, द प्रेस regularly praised the fair policies of the British government in India. Question number 14. Choose the option that do not apply to the immediate objective of the Indian National Congress. P, Q, R, S दिया हुआ है। P में दिया हुआ to prevent national worker from all parts of India from becoming personally known to each other. क्यू में बोल रहा है टू एंड ऑल रेशियल रिलीजियस एंड प्रोविजनल प्रेजुडिस टू प्रमोट नेशनल यूनिटी। आर, टू फॉर्मुलेट पॉपुलर डिमांड्स ऑन वाइटल इंडियन प्रॉब्लम एंड देयर प्रेजेंटेशन बिफोर द गवर्नमेंट। एस में टू मैनिपुलेट द पब्लिक ओपिनियन। ऑप्शन दिया हुआ पी, पी एंड क्यू, क्यू एंड आर, पी एंड एस, आर एंड एस। तो इसका 14 का करेक्ट आंसर होगा पी एंड एस, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, द इशू ऑन विच द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वाज लॉन्च्ड वाज। ऑप्शन दिया हुआ ए, बी, सी, डी। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियंस, द प्रपोज्ड एक्सक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सॉल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और डी है कंप्लीट फ्रीडम।
क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा सी, सॉल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेटमेंट वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट। 17 का होगा डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, at Wardha the Congress Working Committee adopted a resolution that was passed in Bombay. Name the resolution. पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, नॉन कॉपरेशन रेजोल्यूशन या स्वराज रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा बी, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ नेताजीज लाइफ इन chronological order. Supreme Commander of INA, Provisional Government of Free India, formation of Forward Bloc, Congress, Presidency। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 19 का डी, 4312। Question number 20, which of these statements regarding the status of princely states are incorrect with reference to the Mountbatten Plan? क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, plebiscite will be held for all states. Question number 21, which of the following is an executive function of the president in a parliamentary system? 21 का होगा बी, अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 22, assertion and reason. The president use his discretionary judgment to appoint the prime minister when no party has a clear majority in the parliament. रीज़न दिया हुआ, the president cannot appoint a new prime minister on the advice of outgoing prime minister who may have lost the election or the support of the house. क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 23, Mr. Patil was not found eligible for the election as the Vice President of India, even though he had the qualification of being a citizen of India and not being a member of the Parliament and State Legislature. On what ground was he disqualified? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट होगा सी, फॉर होल्डिंग एनी ऑफिस of profit under the center of the state's government. Question number 24, your uncle is a renowned scientist. He has neither contested nor won any election to the Rajya Sabha, but he has recently become a member of the Rajya Sabha and has been appointed as a minister. How is this possible? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बी, ही वॉज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 25, इन अगस्त 2002 प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम sought the help of the Supreme Court in connection with the controversy between the Election Commission and the government on election in Gujarat. The jurisdiction of the Supreme Court applicable in the above mentioned situation is. क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा ए, रिवाइसरे। क्वेश्चन नंबर 26, the House is discussing an issue regarding the nation in the month of November. Which session is in motion? Summer session, budget session, winter session, monsoon session.
क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा विंटर सेशन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड वॉर वन, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ कौन सा इनकरेक्ट है? ट्रिपल इंटेंस, फ्रांस, रसिया, जापान। ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 का होगा डी, सेंट्रल पावर, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा बी, टर्म इन ऑफिस इन 3 years। क्वेश्चन नंबर 29, 28 में कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द UNO हैज़ बीन रिसेंटली एडेड? इसका करेक्ट आंसर होगा डी, डिसम, डिकोलोनाइज एंड डेवलप। क्वेश्चन नंबर 30, वाई डिड ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ appeasement towards Japan in the period before the outbreak of World War II? इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का, जापान कुड बी यूज टू वीकेन चाइना। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वार इज इनकरेक्ट? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा डी, the US and USR were engaged in direct wars. Question number 33, which movement is depicted in the above cartoon? क्वेश्चन नंबर बी होगा इसका आंसर।